Good morning to all. Dear students, you all know very well God Almighty has created a beautiful world in which all living beings are born, grow, and finally wither or perish. Have you observed and analyzed your daily life from the viewpoint of a chemist? In the morning, we ignite the cooking gas and it immediately burns. This is followed by cooking of the food material for our breakfast, which we eat and enjoy. Our body is regarded as a furnace in which the food stuff burns to provide us energy. All of us then proceed for our routine work. Gone are the days when people used to walk. In this machine era, everybody takes the help of machines in which diesel or petrol burns. And in nutshell, we come across a variety of changes which may be both physical and chemical. As we all know, a physical change can be easily reversed, but it is not easy to reverse a chemical change. Have you ever thought of reason behind it? Actually, in chemical changes, new substances are formed and it is difficult to regenerate the original substances known as reactants. In the present chapter, our main emphasis will be on different types of chemical reactions that we come across and the chemical equations which represent them. Apart from that, we shall also find ways and means to balance them so that the number of the atoms of different species involved in these reactions may become equal. So, the title of this chapter is Chemical Reactions and Equations. We come across different types of changes or we can say chemical changes. For example, rusting of iron nail, लोहे में जंग लगना, तो उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है. सेकेंड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है. थर्ड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं जो लेड आयोडाइड के होते हैं. नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस occurs. Now, first one, rusting of iron nail. Iron articles, if left exposed in air for a long time, then a brown patch or layer appears on their surfaces, which is called rust. And chemically, rust is hydrated ferric oxide and the chemical formula is Fe2O3.XH2O. इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी लोहे की चीज़ को काफ़ी टाइम तक एयर में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जो है वो जम जाती है और उस भूरे रंग की परत को हम बोलते हैं रस्ट और उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O. मीन्स इसमें X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. आप 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन को जब लेते हो तो इसको एक्सपोज करेंगे हम एयर में कुछ टाइम के लिए तो एक कोटिंग उसके सरफेस पे जम जाती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. And in order to remove this white coating, we rub the metal surface with a sandpaper. बहुत बार हम क्या करते हैं, रेगमार से सैंड पेपर से उसके सरफेस को रगड़ते हैं till it acquires its original luster. And this ribbon burns with brilliant or dazzling flame. And energy in the form of heat and light is emitted. White ash or white powder is formed here and it is collected in a china dish. Next is precipitation reaction. देखिए एक
बीकर में, बीकर 1 में मैंने लिया है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, यहाँ पे दिखाया गया है। बीकर 2 में पोटाशियम आयोडाइड solution, and then when this potassium iodide solution is poured into lead nitrate solution, its original color, potassium iodide का जो original color है that is colorless, ये colorless है, और lead nitrate ये भी कैसा है, originally colorless है। लेकिन जैसे ही हमने बीकर 2 से solution को हमने बीकर 1 में डाला है, इन दोनों को मिक्स किया, हमारे पास लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो both these solutions are colorless originally, and when we added potassium iodide into lead nitrate, हमारे पास yellow precipitate बने हैं, which can be seen at the bottom of the beaker here, and on analysis it is found to be lead iodide, and it doesn't dissolve in water and separates out as a precipitate. Okay, fourth is evolution of hydrogen gas. Take a conical flask, then add a few granules of zinc, हम जिंक के ग्रेन्यूल्स वहाँ पे ऐड करेंगे। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या उसकी जगह पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्या होगा, वहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स और एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, ब्रिस्क एफर्विसेंस वहाँ पर होगी, एंड बबल्स ऑफ गैस कैन बी सीन देयर, and when you touch the flask with your hand, it feels to be heated up, आपको ये गर्म महसूस होगा। तो हम कहते हैं कि it is a exothermic chemical reaction and hydrogen gas is collected over water because it doesn't dissolve in water, and इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं downward displacement of water. Since the gas has displaced water, okay, it is collected over water. On the basis of these chemical changes or chemical we can say reactions, we can conclude characteristic features of chemical changes. First one, change in color. Second, change in state. Third, evolution of gas. Fourth, formation of precipitate. Fifth, change in temperature. And sixth, that is chemical changes are irreversible in nature, and chemical changes are accompanied by certain reactions known as chemical reactions. And what does it represent? Chemical reaction represents the change of the species into new species, मतलब जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नई स्पीशीज बनाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट्स? द रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड दो स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, इक्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस. A chemical equation links together the substances which react with the new substances that are formed. Means reactants को products के साथ link करना है। तो ये कौन करता है? Chemical reactions. Chemical reactions में जो reactants हैं वो products के साथ link करने का काम करता है chemical equation, मतलब chemical equation की form में हम इन दोनों का link जो है वो बताते हैं। Now next, how many types of chemical equations are there? There are two types of chemical equations, or we can say chemical equations can be represented in two forms. First is word equations and second is symbolic equation or symbol equations. Word equations. In word equations, reactants and product species are written as words. Words की फॉर्म में लिखेंगे हम, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, when they react they form magnesium oxide. तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम
एंड ऑक्सीजन, इनको हमने बोला ये क्या है, रिएक्टेंट्स, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, ये हैं रिएक्टेंट्स, एंड लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, ये बन रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स. ओके. थर्ड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, these are reactants, they react together to form zinc chloride plus hydrogen, these are products here. Now there are certain rules for writing chemical equations. First general rule, that is the reactants are written on the left hand side with plus sign between them. Second rule, the products are written on the right hand side with plus sign between them. Third, the arrow represent link between reactants and products, or we can say an arrow is there that separates reactants from the products, and the direction of the arrow head points towards the products. Second is writing symbol equations. In symbol equations, elements are written in the form of symbols and chemical compounds are written in the form of formulas. A brief representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulas of the substances involved. For example, देखिए यहाँ पे Mg plus O2, these two reactants when react together they are forming magnesium oxide. ये unbalanced है equation. Lead nitrate, potassium iodide, they react together to form potassium iodide plus lead iodide plus potassium nitrate. Then zinc plus HCl, these are reacting, and ZnCl2 plus H2 are obtained in the form of products. Next is unbalanced and balanced chemical equations. First of all, balanced chemical equation. Number of same atoms on both sides of the chemical equation must be equal. अगर ऐसा होता है, number of same atoms केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पे अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है. नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? It states that the total mass of all the products of reaction in a chemical reaction is equal to the total mass of all the reactants. मतलब जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होना चाहिए. And symbol equation for a chemical reaction is always written from the word equation. पहले हम word equation लिखेंगे, after that word equation को देख के हम क्या लिखते हैं, symbol equation लिखते हैं. And it is necessary to balance a symbol equation and not a word equation. मतलब जब भी हम balancing करेंगे तो हम symbol equation को लेते हैं, उसकी हम balancing करते हैं, word equation की balancing नहीं करते हैं. And unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. Now हमने क्या बोला, अगर वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी तरह से सराउंडिंग में, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा रिएक्टेंट्स के बीच में जिससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में. अब ये जो केमिकल इक्वेशन है पहले ये लिखी जाती है वर्ड फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, देन उस वर्ड इक्वेशन को देख के हम लिखते हैं सिंबल इक्वेशन. ये जो सिंबल इक्वेशन हमारे पास यहाँ आती है ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में होती है जिसको हमने नाम दिया स्केलेटल इक्वेशन. देन हम स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो देखिए केमिकल चेंज हो रहा है सराउंडिंग में,
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के, तो अनबैलेंस में देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, राइट पे भी 1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट पे 1 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल on both sides. Similarly, H2 plus O2, it gives us H2O. Oxygen atoms here are also not balanced. अगर हम इनको बैलेंस करना चाहें टू इक्वेशंस को, तो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर 2 कोफिशिएंट लगाएंगे, यहाँ पर भी 2। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर भी वाटर के साथ 2 लगेगा। नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, हम केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। Major steps in balancing the chemical equation. First one, step 1, word equation. Second, उसको हम क्या करेंगे, सिंबल इक्वेशन में चेंज करेंगे, देन उसको हम बैलेंस करेंगे। While balancing, don't change the formula of the substances. बैलेंसिंग के टाइम पे हम फॉर्मूले चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पे, वर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दीज आर reactants and these are products. Now this word equation is converted into symbol equation. Zinc का जो symbol है that is Zn, sulfuric acid को हम लिखते हैं H2SO4 and zinc sulfate होता है ZnSO4, hydrogen H2. तो third step, count the number of atoms of all the elements in the reactants and products on both sides of the equation. Okay, count करेंगे हम इनको। एलिमेंट्स, फर्स्ट इज जिंक, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन। जिंक जो है लेफ्ट साइड पे 1 एक एटम है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में भी 1 एटम है जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड 2 एटम्स आर प्रेजेंट। सल्फर बोथ साइड्स पे 1 एटम है। ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं। तो when we observe these number of atoms on both sides of chemical equation, we find that number of atoms of all elements are equal and then equation is already balanced. Now second question, magnesium metal reacts with hydrochloric acid to form मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। स्टेप 1 क्या होगा, सिमिलरली वर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने वर्ड्स में लिखा है, देखिए MAGNESIUM, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्ड्स में लिखा है, देन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सेकेंड स्टेप इज राइट सिंबल इक्वेशन फ्रॉम दिस वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इट इज सिंबल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये स्केलेटल इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्टेप 3, बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, रिएक्टेंट्स के साइड में भी और प्रोडक्ट्स की साइड में भी। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम क्या है 1, यहाँ पे कितने एटम्स हैं 1 हैं, और प्रोडक्ट्स की साइड में भी 1 है, क्लोरीन 1 एंड प्रोडक्ट्स की साइड में 2, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एंड
राइट हैंड साइड पे 2। अब देखिए ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है बैलेंस करने की। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। यूज एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स। मैग्नीशियम जो है इसको जब हम चेक करते हैं इक्वेशन में तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लोरीन के केस में क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 2 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट 2 बिफोर HCl, देन इक्वेशन विल बी मैग्नीशियम प्लस 2 HCl gives us MgCl2 plus H2। अब हम इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये जो 2 है ये दोनों के साथ जाएगा, H के साथ भी और Cl के साथ भी। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, hence the equation is balanced now. Now third question, iron reacts with water to form ferric oxide, liberating hydrogen gas. Now first question, फर्स्ट जो स्टेप है हमारा यहाँ पे दैट इज हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन, एंड सेकंड सिंबल इक्वेशन लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। एंड वर्ड इक्वेशन है आयरन प्लस वाटर। आयरन क्या कर रहा है, आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो आयरन प्लस वाटर इट गिव्स अ फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिंबल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आयरन है, वाटर, फॉर्मूला क्या है इसका, H2O, आयरन का सिंबल है Fe, Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का सिंबल H। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो H2। बैलेंसिंग के टाइम पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। पहले तो एलिमेंट लिखेंगे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 1, राइट हैंड साइड पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 2 है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है दिस वन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1, राइट हैंड साइड पे 3 है। तो ऑन इंस्पेक्शन compound with maximum number of atoms, that is Fe2O3, ferric oxide is having maximum number of atoms। तो हम क्या करेंगे, हम appropriate coefficients यूज करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड है हाइड्रोजन वाली। तो हम क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट्स 3 बिफोर H2O, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम 3 लगा रहे हैं, और अब जब हमने यहाँ पे 3 लगा दिया तो इक्वेशन क्या हो जाती है, पार्शियली बैलेंस्ड हो जाती है। अब हाइड्रोजन एटम्स पहले जो बैलेंस थे 3 लगाने से ये 6 हो गए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, टू इक्वेट हाइड्रोजन एटम्स पुट 3 बिफोर H2 ऑन राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमें 3 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। एंड टू बैलेंस आयरन एटम्स नाउ पुट 2 बिफोर Fe, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए आयरन 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर भी आयरन 2 है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर भी 3 हैं, हाइड्रोजन 3 2 6 और यहाँ पर भी 3 2 6, तो हेंस when we check this equation we find it to be balanced. Now next, ways to make chemical equations more informative। केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, तो हम करते क्यों हैं, पहले उसको लिखते क्यों हैं ऐसे, टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की हमें अच्छी पिक्चर मिल जाए। सेकेंड, राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को बताने के लिए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे स्टेट सिंबल्स हैं, एस लिखते हैं हम सॉलिड स्टेट के लिए, एल लिखते हैं हम लिक्विड स्टेट के लिए, जी गैसियस स्टेट, एंड एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे AQ, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्ट को या किसी सॉल्यूट को, वी कैन से, एंड अपवर्ड एरो and downward arrow, two things are mentioned here. Upward arrow, it represent gas evolved during a chemical reaction, and downward arrow, it represents precipitate,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे हमने येलो कलर प्रेसिपिटेट किए हैं पीछे लेड आयोडाइड के केस में। तो देखिए ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पे देखिए, सोडियम 2 एटम्स हैं सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में, वाटर एक्वस, NaOH एक्वस, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन हम अपवर्ड एरो से बता सकते हैं गैस को। ओके, अब ये इक्वेशन जो है इसमें सिंबल्स लिखे गए हैं, स्टेट बताई गई है सिंबल के साथ, फॉर्मूलाज के साथ यहाँ पे स्टेट बताई गई है, और दूसरी इसी की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी गई है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है जिसमें हमने स्टेट्स बताई हैं दैट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। सिमिलरली दिस इक्वेशन, इसमें भी हमने स्टेट्स बताई हैं, तो ये क्या है, मोर इन्फॉर्मेटिव है। नाउ नेक्स्ट इज H2O लिक्विड लिखते हैं हम कई जगह पे, और कई जगह पे हम H2O एक्वस लिखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? एक्वस वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर लिया जाता है, एंड लिक्विड 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, उसके लिए हम इसको लिक्विड लिखते हैं जब हम 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। The chemical equations in which heat evolved or absorbed during the chemical reaction are mentioned are called thermochemical equations. अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, these are accompanied by the evolution of heat, and endothermic reactions are accompanied by absorption of heat. Example, कार्बन व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कोक को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एंड साथ में 393.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, हैंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, 2NO गैस एंड माइनस 180.0 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इतनी एनर्जी जो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आर मेंशन्ड ईदर अबव और बिलो द एरो हेड। इस तरह से हमने लिखा है, नाइट्रोजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद 3 molecules of hydrogen gas we obtain ammonia gas। तो यहाँ पर एरो के ऊपर देखिए 500 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 200 एटमॉस्फेरिक लिखा है, और साथ में आयरन कैटलिस्ट लिखा है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट की, दीज आर रिएक्शन कंडीशंस बोलते हैं इनको। तो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर मेंशन्ड ईदर अबव और बिलो द एरो हेड। Next is 2 molecules of SO2 sulfur dioxide when they react with oxygen gas in the presence of platinum catalyst, और हीट करते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास 2 molecules of SO3 gas are liberated, हमें ये molecules मिलते हैं। Next is symbols for reversible reactions। यहाँ पर reactants हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जब हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं तो हम इस तरह से एरो लगाते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में चेंज कर रहे हैं तो हम इस तरह से एरो लगाते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड में भी हो सकता है, मीन्स इट कैन बी रिवर्स्ड, एंड दिस इज सिंबल फॉर reversible reaction. It is symbol for reversible reaction. For example, nitrogen gas when it reacts with 3 molecules of hydrogen gas, this reaction gives us 2 molecules of ammonia gas. When ammonia is decomposed, means backward reaction, तो हमें nitrogen and hydrogen मिलता है, that is reversible reaction. Here barium chloride plus aluminium sulfate, they react to form बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स काउंट करेंगे, फिर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आप जब इसको चेक करते हो तो यहाँ पे 1 है, 1 एटम, यहाँ पर भी 1 है,
ठीक है। यहाँ पर 2 and 3 हैं, 2 and 1 है, 3 and 1 है, यहाँ पर 12 and 4 हैं। तो इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसको 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड पे सल्फर को, थर्ड पे ऑक्सीजन को, और देखिए ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जब आप कॉफिशिएंट्स ऐड करेंगे। तो थर्ड नंबर पे इसको भी और इसको भी करेंगे आप बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बाद ये इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 थ्राइस, देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ BSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन सिंपली एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स टेक प्लेस। सिंपली जो पार्टनर्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड है, मान लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट है, यहाँ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसा अभी हमने देखा पीछे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बेरियम एंड यहाँ पर सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा, ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने पार्टनर्स को, तो बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। तो नाइदर द एटम्स डिसअपियर नॉर न्यू एटम्स अपीयर, सिंपली एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स टेक्स प्लेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स होगा, ठीक है। इनफैक्ट इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टिंग स्पीशीज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट स्पीशीज आर फॉर्म्ड, एंड एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स इन अ केमिकल रिएक्शन occurs in 7 ways. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, fifth precipitation reaction, sixth neutralization reaction, and seventh is reduction oxidation reactions, जिनको बोलते हैं redox reactions. Now first of all, combination reactions. Type 1 combination reactions. What is the meaning of combination reactions? The reactions in which two or more substances combine to form a single substance under suitable conditions. They are known as combination reactions. जैसे कोई दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, या दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, या फिर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर देखिए कंपाउंड है क्विकलाइम, वाटर भी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और स्लेक लाइम बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तीसरा ही कोई कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, दैट इज स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ग्लूकोज है एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दैट इज कंपाउंड है एक तरह से। यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट when it combines with glucose, or we can say when oxidation of glucose takes place during respiration reaction, तो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं, 6 वाटर के मिलते हैं, और साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज लिबरेटेड। तो हम बोलते हैं कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं यहाँ पे, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब चीजें कंबाइन हो रही हैं। सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस splits into two or more simple substances under suitable conditions. फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, ये डर्टी वाइट होता है कलर में, जब इसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखिए दो तरह की गैसेज यहाँ पे लिबरेट हो रही हैं, साथ में सॉलिड फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड हमें मिल रहा है, दैट इज ब्राउन इन कलर।
तो एक जो है वो दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में या सब्सटेंसेस में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सिमिलरली लेड नाइट्रेट है, जब इसको हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 एंड O2 गैस इज लिबरेटेड। ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, NO2 लिबरेट हो रही है, साथ में लेड ऑक्साइड बन रहा है। वाइट कलर का लेड नाइट्रेट था, उसने येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना दिया, साथ में गैसेस भी लिबरेट हुई। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन कंडीशन है हीट, यहाँ पर भी हीट है, ठीक है। तो इसी तरह से कई बार इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है डिकम्पोजिशन, मैनी टाइम्स सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो बेस्ड ऑन रिएक्शन कंडीशंस वी कैन से types of decomposition reactions. There are three types of decomposition reactions. First is thermal decomposition reaction, second is electrolytic decomposition reaction, and third is photo decomposition reactions. थर्मल डिकम्पोजिशन में हम बोलते हैं कि हीट की ज़रूरत होती है। तो ये ऊपर वाले जो दोनों रिएक्शंस हमने लिखे ये हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, दैट इज सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। सोडियम को लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड से, और क्लोरीन गैस जो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। सेकेंड इसमें एग्जांपल है 2Al2O3, टू मॉलिक्यूल्स हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, मोल्टन स्टेट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सिमिलरली NaCl की तरह। 4 एटम्स देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल के मिल रहे हैं, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट, एंड इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम। थर्ड टाइप इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड वाइट कलर का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो ये वाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 सिल्वर एटम्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, एंड यहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। सिमिलरली लाइट येलो कलर्ड सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर्ड सिल्वर, एंड ब्लीचिंग एजेंट दैट इज हाइड्रोजन peroxide in the presence of sunlight, it is converted into 2H2O liquid plus oxygen. तो यहाँ से एक कॉमन जो कंक्लूजन निकलता है दैट इज some compounds are sensitive to sunlight and they undergo photo decomposition reaction, and that's why they are kept in colored bottles because these cut off the light and hence decomposition reaction is slowed down. And this photo decomposition property of silver chloride and silver bromide, it forms basis for black and white photography. And similar questions here, why hydrogen peroxide is generally kept in colored bottles. Second, why silver halides, silver chloride and silver bromide are generally kept in colored bottles, and why are some chemicals and medicines stored in colored bottles. तो common answer है to prevent photo decomposition reaction as they are quite sensitive to sunlight. That's all for the day. Next electrolysis of water we will continue in next video. Thank you. Have a nice day.